चलिए बुक खोल लीजिए आप लोग। ठीक है, पेज नंबर 304। ओके, पेज नंबर 304, मटेरियल एंड प्रोसेस डिटर्शन। तो इस चैप्टर में हमें बात करनी थी फैब्रिक्स के ऊपर। ठीक है, देखिए ओल्ड एयरक्राफ्ट जो पहले एयरक्राफ्ट होते थे उसमें एयरक्राफ्ट स्किन का जो प्रोविजन था दैट वाज कवर्ड बाय द फैब्रिक, एंड नाउ अ डेज इन अ कमर्शियल प्लेन दे आर कवर्ड विद द metal sheets. Like aircraft fuselage, there is a fuselage, and for final shaping, fuselage has been covered by the skin, that is outer covering, you can say. The entire cabins are covered with the sheet metal by wrapping it and just giving a proper shape. So this was done before in the commercialization. It has been covered with the fabric. If you see the old aircraft, okay, so all they were covered with the fabric materials, and fabric is a just kind of uh, cloth or a mix of clothing. So you can consider how much amount of load they can carry, whatever the aerodynamic drag is can be created, whether they are able to handle, and in what extent and how many times, because they are to be also deteriorated due to the atmospheric conditions. Suppose the aircraft is performing flight and it has faces the severe heavy rain and other environmental challenges. So due to that wetting, they are degraded in strength and their life is too much short. So on occasional there was a need for replacement of entire covering. So this was done in the older aircraft. At that time, there was no concept for covering with the metal sheets. And once the aircraft activities has been uh, increases, and due to the development of metals and the technological changes, then it was start covering with the all metal constructions. Okay. So some modern aircraft are all metal construction, including the wing and the fuselage covering. A good many, however, still use fabric for covering wings, fuselage, and control surfaces. तो देखिए अब तो ऐसे फैब्रिक का काम होता नहीं है, बहुत बहुत ही लिमिटेड या नेग्लेजिबल है, बट पहले जो है फैब्रिक का यूज बहुत ज़्यादा था। पूरा पूरा फ्यूजलाज को कवर करने के लिए, जिसमें कि विंग कवर होगा। ठीक है, तो दिस इज इन दिस कंट्री कॉटन फैब्रिक इज यूज एक्सेसफुली फॉर दिस पर्पज। कॉटन फैब्रिक होता था और कॉटन फैब्रिक को प्रोसेस करके उसे जो है इट कैन मेक कंपैटिबल फॉर द यूज ऑफ एयरक्राफ्ट which can bear the aerodynamic load and which can also faces the challenges of environment पर। तो उसके बाद में कॉटन की जगह जो है कुछ एडवांस मटेरियल्स का यूज किया गया, जैसे लेनिन फैब्रिक है। The strength of cotton and linen fabric are equivalent, so that the selection of one of the other depends solely upon the source of supply. To facilitate the discussion of fabric, the tapes and following definitions are given. अब अगर आपको फैब्रिक पढ़ना, फैब्रिक क्या है बेसिकली? इज अ वुवन फॉर्म ऑफ थ्रेड्स
ठीक है। कॉटन थ्रेड्स या जो यार्न्स होते हैं, यार्न्स को वूवन करके फैब्रिक बनाया जाता है। हेलो, कुछ आप लोग बोलेंगे साहब लोग? यस सर। हाँ जी, फैब्रिक तो पहले समझ में आया ना, फैब्रिक है क्या? यस सर। तो अब इसमें आपको पढ़ना है रैप इन द डायरेक्शन अलोंग द लेंथ ऑफ फैब्रिक। फैब्रिक को बनाने के लिए जो थ्रेड्स जो हैं अलोंग द लेंथ ऑफ डायरेक्शन ऑफ फैब्रिक यूज किए जाएंगे, उन्हें वार्प बोला जाएगा, WARP। वार्प एंड्स आर द वुवन थ्रेड्स दैट रन द लेंथ ऑफ द फैब्रिक। और वार्प एंड्स क्या होंगे? वुवन थ्रेड्स होंगे, बुने हुए थ्रेड्स, जो कि लेंथ ऑफ द फैब्रिक की तरफ रन करेंगे। ठीक है। वार्प सिंपली जो आप सीधा सीधा रखोगे, और वार्प एंड जो होंगे जो वुवन होंगे। फिलिंग एंड वेफ्ट इज द डायरेक्शन अक्रॉस द विड्थ ऑफ द फैब्रिक। इसे बोलेंगे फिलिंग या वेफ्ट। ये कौन सा होगा? जो वुवन, जो आपके यार्न जो फैब्रिक के विड्थ में यूज किए जाएंगे, ठीक है, उन्हें बोला जाएगा फिलिंग और वेफ्ट। फिलिंग पिक्स are the woven threads that run across the fabric. The same way with the warp ends, filling picks are the woven threads that run across the fabric. ठीक है, वुमेन थ्रेड्स होंगे जो फैब्रिक के अक्रॉस रन करेंगे, मतलब विथ में रन करेंगे। काउंट इज द नंबर ऑफ थ्रेड्स पर इंच इन अ वार्प और फैब्रिक। तो काउंट जो बोला जाएगा उस वार्प या फिल्म में कितने नंबर ऑफ थ्रेड्स हैं पर इंच, एंड दिस विल इंश्योर or they can make many characteristics over there कि how much or what characteristics will have the fabric. It will depend the number of count. ठीक है, काउंट जितने ज़्यादा होंगे मटेरियल उतना ज़्यादा आपका बेहतर होगा। प्लाई इज द नंबर ऑफ यार्न मेकिंग अप अ थ्रेड। प्लाई क्या है? जब नंबर ऑफ यार्न, कई यार्न क्या, अ सिंगल थ्रेड। ठीक है। हेलो, तो जो आपका प्लाई है, दैट इज द नंबर ऑफ यार्न्स मेकिंग अप अ थ्रेड। एक सिंगल थ्रेड को बनाने के लिए कितने नंबर ऑफ यार्न्स का यूज होता है, उसे प्लाई बोलेंगे। अंडरस्टूड? देखो अभी कुछ इशू है तो तुम लोग बताओ मुझे, पहले ये बेसिक चीजें समझना जरूरी है। जैसे कि एक एग्जांपल दिया है 16/4, इसका मतलब ये है कि 4 yarns of size 16 twisted together to form a thread। 4 धागे 4 yarns of size 16, जिनका साइज 16 होगा, उन्हें ट्विस्ट करके एक थ्रेड बनाया जाएगा। ट्विस्ट रिफर द डायरेक्शन ऑफ ट्विस्ट ऑफ द yarn मेकिंग अप अ थ्रेड। ट्विस्ट एज द नेम इज गिवन। ट्विस्ट जो होता है यार्न को उसके डायरेक्शन में मोड़ करके जो थ्रेड बनाए गए होंगे। ट्विस्ट इज सेड टू बी राइट हैंड व्हेन द थ्रेड इज held vertically and spiral or twist in line downward in the right hand direction। अब है मर्सराइजेशन। Mercerization is the process of momentary dipping cotton yarn or fabric, preferably under tension, in a hot solution of dilute caustic soda. The material acquires greater strength and luster due to the treatment. Its stresses is also somewhat reduced। तो ये प्रोसेस किया जाता है, जो एम्ब्रॉयडरी या जो लोग जो है देखा होगा, इसमें ये प्रोसेस होती है मर्सराइजेशन की। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो है कॉटन इंडस्ट्री में ये सारी प्रोसेस यूज की जाती हैं। तो मर्सराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फैब्रिक को या कॉटन यार्न को
कास्टिक सोडा के हॉट सॉल्यूशन में डिप करके रखा जाता है, डाइल्यूट कास्टिक सोडा होता है। इससे क्या होता है, मटेरियल का जो है स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाती है और लस्टर जो है बढ़ जाता है, ठीक है। और ये स्ट्रेच करने की कैपेबिलिटी इसकी कम हो जाती है। तो वट एवर द पोजिशन ऑफ द शेप यू आर गेटिंग एज पर योर compatibility, that mercerization process has to be gone, and there is a change in mercerization process just by means of changing the caustic soda dilution, ठीक है। जितना डाइल्यूट रखेंगे उतना कम होगा, और उसे थोड़ा कंसंट्रेट करोगे तो ज़्यादा होगा, बट देयर इज ए लिमिट, उस लिमिट के अंदर उसे किया जाएगा। तो इट विल डिपेंड अपॉन द काइंड ऑफ yarn. On that basis of yarn, preferably we have select the dilution of caustic soda. Sizing is a material such as starch which is used to condition the yarn to facilitate the weaving of cloth. Sizing क्या है, is the material जैसे कि स्टार्च यूज किए जाते हैं, which is used to condition the yarn को कंडीशन करने के लिए, to facilitate the weaving of cloth, ताकि वीविंग प्रोसेस को आसान किया जा सके, इसलिए उनके ऊपर स्टार्च लगा दिया जाता है। स्टार्च से क्या होता है, यार्न थोड़े हार्ड हो जाते हैं, मुड़ते कम हैं, तो मुड़ते कम है तो इसलिए थोड़ा बुनने में आसान हो जाता है। आप डायरेक्टली कॉटन यार्न को लेकर के वूवन करने की कोशिश करोगे तो इट विल बी बिकम टू मच डिफिकल्ट एंड इट विल बी टेक टू मच टाइम। सो फॉर अ मास प्रोडक्शन एंड मास वीविंग वी हैव टू गो विद द process and terminology. Hello. Yes sir. Yes, sir. कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? नो सर, सुन रहे। ये हो गया क्लियर? यहाँ तक Yes. में कुछ प्रॉब्लम है, कोई क्रॉस क्वेश्चन करना है या कुछ डाउट है तो आप बता दें। ये टर्मिनोलॉजी है, प्रोसेस है, इन्हें याद कर लो, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये आएगा कि वर्क क्या होता है, फिलिंग क्या होता है, या काउंट क्या है, मर्सराइजेशन प्रोसेस क्या है, साइजिंग क्या है, ये सब एग्जाम में आता है, ठीक है। अब यहाँ पे फैब्रिक के आपको ग्रेड मिलेंगे। फैब्रिक्स आर क्लासिफाइड ऑन बेसिस ऑफ ग्रेडिंग, जैसे ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड ए प्लस, इस तरह से आपका मार्केट में आपको मिलेगा। एंड फॉर स्पेशली इन एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री वी आर यूजिंग ओनली द ग्रेड ए फैब्रिक, ठीक है। ग्रेड ए फैब्रिक में क्या रहेगा कि जो फैब्रिक होगा वो 80 to 84 थ्रेड्स पर इंच, बोथ वार्प एंड फिलिंग, दोनों वार्प और फिलिंग के डायरेक्शन में आपके जो कॉटन थ्रेड्स होंगे वो 80 to 84 होंगे, उसी को बोला जाएगा ग्रेड ए फैब्रिक, ठीक है। A 2-ply yarn is used minimum. What is ply? Ply आपको क्लियर हुआ समझ में? मोहम्मद अरसलान। Yes, sir. बताइए। प्लाई बनाना है ना? हाँ हाँ। सर कितने नंबर ऑफ यार्न्स यूज किए गए हैं एक शर्ट बनाने में? क्या हुआ? सर कितने नंबर ऑफ यार्न्स यूज किए गए हैं एक टैटू बनाने में? अच्छा, यार्न और थ्रेड में कौन बड़ा होगा? सर थ्रेड बड़ा होगा। अच्छा, यार्न समझ में आ गया। यार्न की अगर डेफिनेशन देनी होगी तो क्या होगा? सर हिंदी में शायद रुआ कहते हैं। हाँ सर धागा कहते हैं। हाँ, धागा तो थ्रेड्स को भी धागा ही बोलते हैं। तो उसका सर प्लूरल फॉर्म हो गई वो थ्रेड।
थ्रेड से यार्न से बनते हैं ना, कई यार्न्स को मिला करके थ्रेड बनाया यस सर, जाता यस सर। है। तो आप ये बोलो कि कॉटन का सिंगल जो पीस होगा दैट इज कॉल्ड यार्न। यस सर। ठीक है। और उनसे फिर केबल कैसे बनाते हैं, वायर को मिला के केबल बनाते हैं। यस सर। ठीक है, कई वायर्स को मिला करके ज्वाइंट मिक्स को कर दिया जाता है, ट्विस्ट कर दिया जाता है, जिससे केबल बन जाता है। उसी तरह से थ्रेड्स जो बनेंगे वो यार्न्स को ज्वाइन करके बनाए जाएंगे, यार्न्स को ट्विस्ट करके बनाए जाएंगे। ठीक है। और यस सर। और फिर फैब्रिक को की मैन्युफैक्चरिंग में थ्रेड्स का यूज होगा। ठीक है, थ्रेड्स लिए जाएंगे, क्योंकि देखो यार्न को सिंपली लेना इट इज टू डिफिकल्ट, so that yarn has to be converted into some bigger form, wider form, that is called thread. And finally threads are taken for the purpose of manufacturing of fabrics, because उनका डायमेंशन थोड़ा बड़ा होगा and they were easy to woven, इसलिए फैब्रिक को मैन्युफैक्चर करने में थ्रेड्स का यूज होगा। हेलो। यस सर। चलिए ठीक है। तो ग्रेड ए जो फैब्रिक होगा उसको ग्रेड ए फैब्रिक बोलेंगे, जिसमें थ्रेड्स दोनों वार्प और फिलिंग की डायरेक्शन में 80 to 84 थ्रेड्स लिए गए होंगे। ठीक है, ग्रेड ए फैब्रिक को पर इंच जनरेट करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए। अब मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ, अच्छा इसमें 2 यार्न इज यूज्ड और 2 प्लाई यार्न यूज किया जाएगा। प्लाई क्या था? प्लाई इज द नंबर ऑफ yarns मेकिंग अप अ थ्रेड। ठीक है। अब मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होगी 80 पाउंड्स पर इंच इन बोथ वार्प एंड फिलिंग इज रिक्वायर्ड। टेंसाइल स्ट्रेंथ 80 पाउंड की होगी दोनों डायरेक्शन में, वार्प में भी और फिलिंग में भी। वार्प क्या होगा? लेंथ की जो डायरेक्शन है, और जो फिलिंग होगी जो विड्थ में होगी, एक क्रॉस होगी। नॉर्मल वेट ऑफ दिस फैब्रिक इज 4 आउंस पर स्क्वायर यार्ड। वेट कितना होगा फैब्रिक का? 4 आउंस पर स्क्वायर यार्ड। एक यार्ड जो होता है मीटर में कितना होता है? हेलो। हेलो। यस सर। बताइए। सर अप्रॉक्स 0.91। हाँ, तो कौन सा बड़ा है, मीटर या यार्ड? मीटर बड़ा है, छोटा कितना है? मीटर थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है, यार्ड से। बेसिकली यार्ड जो होता है ना, ये ब्रिटिश स्टैंडर्ड में यूज किया जाता है। जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल यूनिट है दैट इज मीटर। ठीक है। तो मीटर और यार्ड, अब ये यार्ड इसलिए दिया है क्योंकि ये सब पहले मैन्युफैक्चरिंग यूएसए और वो वही वेस्टर्न कंट्रीज में होती थी, तो इसके लिए जो उनके पैरामीटर्स थे उसी हिसाब से हमें पहले बहुत सारे कन्वर्जेंस भी करने पड़ते थे डायमेंशनल चेंजेस के। अब जैसे यहाँ पर इंडिया में हम लोग मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर इंच ये सब यूज करते थे, तो यार्ड को फिर कन्वर्ट करना पड़ता था। इसी तरह से जो लिक्विड की यूनिट्स होती थी, जैसे कि आपका ये हो गया बैरल और गैलन, गैलन तो गैरा, उनको कन्वर्ट करना होता था। एक गैलन में कितना लीटर होता है? 4.5 के आसपास। 4.5 के आसपास। और इंपीरियल गैलन? उसका पता नहीं।
तो यूएस गैलन, चलो ये सब आपको जानने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि वो इंडिविजुअली वहाँ का होता है। वैसे एक इंपीरियल गैलन में 1.2 यूएस गैलन होते हैं और एक गैलन में नॉर्मल जो गैलन है इसमें आपका 3.8 लीटर। एक मिनट एग्जैक्टली देख लेते हैं। हाँ 3.785। ठीक है, तो आप इसके हिसाब से आप कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, तो वेट कितना होगा इसका 4 आउंस पर स्क्वायर यार्ड एंड इट मस्ट बी अंडर 4.5 आउंस टू मीट गवर्नमेंट स्पेसिफिकेशन। तो यूज करने के लिए इनका जो स्पेसिफिकेशन होगा वो 4.5 आउंस के अंदर होगा। ठीक है, दिस फैब्रिक मस्ट a स्मूथ नेकलेस सरफेस टू ऑब्टेन द बेस्ट रिजल्ट। The cloth is rolled or calendared to obtain the surface. The sizing content is limited to maximum of 2.5%. Another requirement is mercerization of yarn prior to the weaving while under tension. This method of mercerization is preferable to mercerizing the woven cloth. A 60/2 yarn will give the strength properties required for the grade of fabric. तो लाइट एरोप्लेन फैब्रिक एंड ग्लाइडर फैब्रिक है फॉलोइंग अप्रोप्रिएट कैरेक्टरिस्टिक। देखिए वेट दिया है आउंस पर स्क्वायर यार्ड, लाइट एरोप्लेन में इतना है और ग्लाइडर में इतना है 2.6 एंड 2.7। वार्प की डायरेक्शन में 115 और 95, हिल्स की डायरेक्शन में 115 और 100। तो ये सेट पैरामीटर्स हैं जो ऑलरेडी दिए हुए हैं। ठीक है, इसके बाद लैनिन फैब्रिक मेड फ्रॉम द बेस्ट ग्रेड ऑफ आयरिक्स फ्लैक्स इज यूज्ड यूजुअली इन इंग्लैंड बट नॉट ऑल ओवर दिस कंट्री। दिस फैब्रिक इज प्रैक्टिकली आइडेंटिकल विद द ग्रेड ए कॉटन फैब्रिक insofar as weight, strength and thread per inch are concerned. While linen fabric will take on acetate dope finished excellently, cotton fabric will not. तो इसमें जो है एसिडेट डोप का यूज किया जाता था। डोप होता था जो उसके ऊपर लगाया जाता था, जैसे लेनिन हो गया। अब डायरेक्ट लेनिन यूज करोगे तो जब एयरक्राफ्ट फ्लाई करेगा तो एयर पास हो जाएगा उससे, लेकिन उसको कवर करने के लिए उसके ऊपर टेंट जैसा प्रोविजन लगाया जाता था जिसे डोप बोलते थे। ठीक है, इसी तरह से सरफेस टेप बेसिकली यूज किए जाते थे जहाँ पे रिब या स्ट्रिंग्स को कवर करने के लिए, या स्टिचिंग पोर्शन होता था उसको कवर करना। देखो जहाँ से स्टिच है, अगर उसको आप विदाउट स्टिच कर के बाद अगर आपने उसको कवर नहीं किया है और उस केस में एयरक्राफ्ट फ्लाई करेगा तो देयर इज अ मोर चांसेस टू ब्रेक ओवर दैट लोकेशन। उस जगह से फैब्रिक के फटने के चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे ड्यू टू द स्ट्रेचिंग एंड ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ डायनेमिक एयर। तो इसीलिए उन सबको कवर करने के लिए सरफेस टेप के यूज किए जाते थे। सरफेस टेप इज अ फिनिश टेप दैट इज अ डोप्ड ओवर ईच रिब और सीम टू कवर द स्ट्रिच। एक इससे सरफेस टेप से एडिशनल स्ट्रेंथ भी मिल जाती है एंड दे विल एक्टेड एज अ कवरिंग। इट प्रोवाइड्स अ नीट स्मूथ फिनिश्ड अपीयरेंस। ये देखो इसमें इन्होंने पूरा दिया हुआ है कि किस तरह का होगा, क्या उसकी डायमेंशंस होंगी। ये सब आपको इतना जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना जानना है कि डोप क्या होता है और किस लिए यूज, कहाँ पे किस पर्पज के लिए यूज करते हैं। तो डोप क्या है? सर डोप एक बार और बताइए। डोप होता है जो फैब्रिक के ऊपर जो है ना, फैब्रिक को कवर करने के लिए अप्लाई किया जाता है। जैसे जैसे वॉल्स में पेंट लगाया जाता है, ठीक है, वैसे फैब्रिक कवरिंग के लिए, फैब्रिक को फिनिश करने के लिए एक
एसीटेट पेंट होता है, लिक्विड पेंट जैसा होता है, उसे उसके ऊपर लगाया जाता है, जिसको बोलते हैं डोप। ठीक है। और Yes, sir. सरफेस टेप का यूज किया। हाँ जी, समझ में आया? यस सर, आगे। इसके बाद सरफेस टेप होते हैं। सरफेस टेप वहाँ पे यूज किए जाते हैं जहाँ फैब्रिक में स्टिचिंग की होती है या एजेस होते हैं। ठीक है। तो उनको एडिशनली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए एंड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द एरोडायनेमिक बिहेवियर एंड स्ट्रेचिंग ऑफ फैब्रिक इटसेल्फ, दे आर कवर्ड विद द टेप। तो टेप से तो एक तो क्या होता है, सरफेस का जो है स्मूथनेस सरफेस पे आ जाती है, कवर हो जाता है, और दे विल प्रोवाइड एन एडिशनल स्ट्रेंथ वेल। ठीक है। यस सर। ओके। तो आज हम लोग यहीं पे ख़त्म करेंगे। ठीक है, थोड़ा मुझे काम भी है। हमारा सिलेबस ठीक ही चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर हम मिस भी करते हैं 1-2-4 क्लास तो कोई दिक्कत नहीं होगा अपने को। तो तुम लोग भी थोड़ा आज आराम करो, बाकी क्लास अपना देखना। अभी मैं यहाँ पे एंड करूँगा क्लास। ठीक है। यस सर। चलो, ओके, थैंक यू फिर। थैंक यू सर।